बहुत बहुत जुन सलाम आदाब व जय हिंद और गज़म 90.8 की टीम आज एक मरतबा फिर से कुछ नए प्रोग्राम्स के हवाले से कुछ नए सेगमेंट्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, इस वक्त हम पहुँचे हैं बाज़ार ख़ास में बल्ती बाज़ार, जहाँ पर आज एक शानदार मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल और मॉडल प्राइमरी स्कूल का यहाँ पर रस्म इफ्तिताह होने जा रहा है, जो हमारे आज के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखौन साहब और दीगर हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और दीगर ऑफिसरान के ज़ेर निगरानी में ये रस्म इफ्तिताह होने जा रहा है। जी हाँ मेरे मोहतरम सामीन और नाज़रीन हज़रात, आप सभी खूबी जानते हैं, आप न सिर्फ ख़ित्ता लद्दाख में मुल्की सतह पर भी अगर हम देखें तो इस कस्म के बिल्डिंग्स, इस कस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर, महज से के प्राइमरी स्कूल में इस तरह के प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के शानदार जो है बिल्डिंग का यहाँ पर तामीर करना और इस तरह के कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल का तामीर करना, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ के जो इससे करगिल खास के काउंसलर साहब हैं और दीगर यहाँ के लोगों की जो शौक़ है, ज़ौक़ है तालीम के हवाले से हमें इस बात का ये हमें सबूत देता है कि यहाँ के लोगों में कितना शूर है अपने एजुकेशन को लेकर। तो आप जुड़े रहेगा मुख्तलिफ जो है सेगमेंट्स हमारे एजुकेशन के हवाले से और हमारे दीगर मेहमानान क्या कुछ आज की इस तकरीब के हवाले से हम तक पहुँचाते हैं। आप जुड़े रहेगा फिरोज साहिल और हमारी टीम के साथ। Government Primary School, Balti Bazar, Kargil. A remarkable journey. It all began in a rented room way back in 2003 with nothing but hope and determination to provide education to the children of this community. Soon after, the community stepped forward but provided a mere community hall for the school's operations. However, that hall was eventually demolished to extend the road, leaving the community with no such facility. This setback was particularly significant because many members of this community had migrated from other places and had limited resources or land to reconstruct similar facilities. The community hall was not just a building, it was the only place where people could gather for festivals, community functions, and other essential events. Despite this, their commitment to education never wavered. The Village Education Committee approached the then Cabinet Minister, Shri Qamar Ali Akhund, whose efforts were instrumental in ensuring that the community hall was relocated to a new place. This pivotal action allowed the community to continue their educational endeavors with a modest shelter in this new place. However, the shelter was not owned by the community, so the community approached ex-Chief Executive Councillor LHDC Kargil, Shri Feroz Ahmad Khan, and ex-Deputy Commissioner Kargil, Shri Basirul Haq Chaudhry, for further support. And with the hard work and efforts of everyone, a significant milestone finally achieved. The small building transformed into this beautiful structure, adapting to modern needs with enhanced amenities, technology-enabled classrooms, and sustainable designs. This school premises is not only a center of education, but also a vital space for the community to gather, celebrate festivals, and host important events. What makes this story even more inspiring is that despite most of the students enrolled in the school coming from the marginalized societies and migrant families from other areas, the community has continued to honor and support the school.
They may have fewer children of their own attending the school, but their contributions remain steadfast. They are striving to take this school to excellence, providing not just resources but also hope and opportunities to those in need. With this hope, recently an MOU has been signed between the Village Education Committee and the School Education Department Ladakh for making the institution a model school. This commitment to helping others is a true reflection of their values and their belief in the power of education. Here, the dedicated efforts of the teachers as well must be acknowledged, who are working tirelessly to ensure that the students receive the best possible education. Their hard work, passion, and unwavering commitment to the students' growth have been pivotal in shaping the success of this institution. They are the backbone of the school, and their efforts truly deserve recognition. The facilities we now enjoy are a testament to the community's dedication and the invaluable contributions of all those who are involved, especially Shri Haji Abbas, Honorable Councillor LHDC Kargil, whose efforts were truly paramount in this journey. Looking ahead, this institution envisions being a beacon of knowledge and a center of excellence for our children, equipping them with the skills and values they need to thrive in the modern world. The goal is to nurture not only academic brilliance but also moral character, cultural awareness, and leadership qualities. Let us all work together to uphold this vision and fulfill these commitments for a brighter future. Thank you for your presence. ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ہمارے RW کے پورے ٹیم، اور خاص کر ہمارے انجینئر کونسل تاشی صاحب جو اس سے پہلے بھی ہمارے RW کے ایگزیکٹو کونسلر تھے اور اس بار بھی ایز ایگزیکٹو کونسلر کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے نئے کونسل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر جناب ڈاکٹر جعفر صاحب اور جناب شری کانت بالا صاحب سوسے صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ دونوں نے بھی اس اسکول کے جتنے بھی لیبلٹیز وغیرہ تھے، چاہے پچھلے سال ہو چاہے اس سال ہو، ہمارے کنٹریکٹر وغیرہ کا جو بھی ایشو تھا آپ لوگوں نے حل کر کے دیا. اس کے لیے بھی میں آپ دونوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. ایشوز میں آپ لوگوں کے پاس لے کے آیا، خاص کر ڈی صاحب کے پاس ہو یا سی صاحب کے پاس ہو، آپ لوگوں نے کبھی نہ ان کے پیرنٹس وغیرہ جو ہے مطلب صبح بھی دیں گے. باقی اس زمین کے لیے چاہے ہمارے فیروز جو ہمارے سنتوش صاحب بھی آئے تھے، پیچھے انہوں نے بھی ہمیں کافی اس زمین کو بنانے کے لیے سپورٹ کیا تھا. تو آپ سبوں کا میں میڈم رضیہ بانو ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایگزیکٹو انجینئر نظام حسین منشی وقت تھے، بیچ میں ہمارا شبیر صاحب بھی آیا، اس کے بعد میڈم فیضا آیا، انہوں نے بھی اپنے حساب سے ہمیں کافی سپورٹ کیا. تو میں آپ سبوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس اسکول اور اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے ہر وقت ساتھ دیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا بھی
तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ासकर हाजी साहब को, कि हमारे अकाउंट्स के साथ के साथ सबों ने मुझे साथ दिया इस काम को पूरा करने के लिए। इसके लिए मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आप सबों का एक बार को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Now I would like to request Honorable ex-CC Sir Kacho Feroz Khan Sir, please come on dais and share your words of wisdom. ये एनिमल हस्बेंड्री का भी था और इसमें शायद मुझे लगता है रेवेन्यू का भी कुछ पटवार खाना था, कुछ था, मुझे अभी भी याद है। तो उसको शिफ्ट करने में जो है डिपार्टमेंट ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई कि हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं, और बीच में पब्लिक का भी कुछ था क्योंकि ये वेटरनरी हॉस्पिटल था, मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे। तो बाद में हमने इसको जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और हमने डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको जगह दे दिया वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री को। इसके बदले में फिर यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरुआत हुआ, तो इसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम ये भी आया कि भाई एक प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग पर इतना हम क्यों खर्चा कर रहे हैं। सिर्फ इसका फ़ायदा जो है आपको स्कूल को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो सराउंडिंग्स में जितने भी हमारे लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहते हैं, वो सब इसका जो है फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं इन दिनों आपका पॉपुलेशन के बढ़ने से, आबादी के बढ़ने से जो शहर हैं आपका, सिटीज़ हैं, उसमें हर जगह की तंगी हो रहा है। तो ऐसे जगहों में ऐसे हॉल का यहाँ पे बनना जहाँ पे हम सोशल गैदरिंग्स हो या कोई भी गैदरिंग्स के लिए ऐसे हॉल्स बनना जो है एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक चीज़ है। और बिल्डिंग को देख के हमें लगता है कि इसमें वाकई जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, रूरल इंजीनियरिंग विंग ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी लोकल टच भी इसमें दिया है। तो हम साथ साथ आपका जो है एजेंसी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। इसमें पहले जैसे अब यहाँ पे दिखाया भी गया आपका कि इसके क्या पोजीशन था, उसमें हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर कमर साहब थे उन्होंने भी इस बिल्डिंग में इंटरवीन करके लोगों को दूसरी जगह स्पेस दिया। उसके बाद जितने भी डिप्टी कमिश्नर पहले थे या अभी के डिप्टी कमिश्नर जो हैं श्रीकांत साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और अभी इसमें जो कुछ बचा हुआ था 1-1.5 साल, उसमें हमारे अभी के काउंसलर हेडेड बाय हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो है साथ दिया। क्योंकि एक एजुकेशन हम लोग देखते हैं कि कुछ साल पहले एजुकेशन अगर जहाँ पर भी आप जाते, किसी गांव में भी आप जाते, सबसे वर्स्ट बिल्डिंग जो है वो हमारा स्कूल एजुकेशन की जो बिल्डिंग वो होता था, जिसके शीशे, जिसके खिड़कियाँ सब टूटे होते थे। उसका कारण ये था कि उसको लोग जो है ऑन नहीं करते थे। वो समझते थे ये एक सरकारी बिल्डिंग है, और वो लोग ये समझते थे कि सरकार पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है। उनको मतलब ये एहसास नहीं था कि ये हमारा अपना बिल्डिंग है। अभी अगर आप देखेंगे कि हमारा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन या बाकी मोस्टली मैं कहूँगा स्कूल एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा बन रहा है। और उसका एक मेन रीज़न ये है कि लोगों ने इस बिल्डिंग को, इस इंस्टीट्यूशन को ऑन करना शुरू किया। अब लोग समझते हैं कि ये हमारा अपना बिल्डिंग है। जिस तरह से वो अपने प्रॉपर्टी को आप देखभाल करते हैं, उसी तरह से लोग अब स्कूल का भी जो है देखभाल करते हैं। और अल्लाह की मदद से हम देख रहे हैं कि एक तो वो, दूसरा हमारे स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट हो या टीचर्स इतने डेडिकेटेड हो गए हैं कि अभी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में अब लोग प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। क्यों? रीज़न ये है कि उसमें हाईली क्वालिफाइड टीचर जो इस वक्त हमारे पास है, एक वो। दूसरा, पहले बेशक हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, लेकिन अभी आप कोई भी आप क्लासरूम देखिए, आप लेबॉर्ट्रीज देखिए, लाइब्रेरीज देखिए, इवन स्मार्ट क्लासेस भी आप हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ गए, इवन कंप्यूटर लैब्स भी आ गए। तो आप स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक अगर ये है कि जो विलेज एजुकेशन कमिटीज़ जो यहाँ पे हमने बनाए हैं, उनका थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा मेहनत चाहिए। क्योंकि जब तक इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कम्युनिटी को हमें आगे आना है। आगे आके जो है ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारे स्कूल के हों, उनमें हमने अपना रोल एक जो है कम्युनिटी को भी जो है निभाना है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे बल्ती बाज़ार के विलेज एजुकेशन कमेटी को और यहाँ के काउंसलर को कि एक तो मुझे भी यहाँ पर उन्होंने बुलाया और इस बड़े फंक्शन में जो है मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और आप लोगों को यही हमारी एडवाइस है कि सिर्फ बिल्डिंग बनने से जो है आपका एजुकेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। इस बिल्डिंग में
बनने के बाद बेशक ये वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ हैं आपका एजुकेशन में, लेकिन साथ में जो टीचर्स की डेडिकेशन, आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्लस जो है हमारा विलेज एजुकेशन का टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है, और इवन डिपार्टमेंट के भी। तो मैं ये जो सुन के अभी हमें काफ़ी खुशी हुई कि 70+ स्टूडेंट्स एक प्राइमरी स्कूल में है, और वो भी आपका सिटी में जहाँ पे इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रोल आगे और बढ़ेगा जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। और मैं साथ ही यहाँ आपके काउंसलर साहब का बहुत ही उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि हमने इनमें एक खूबी ये देखा है काउंसलर साहब में, बाकी हम सब काउंसलर हैं, लेकिन ये जब कोई चीज़ जब शुरू करते हैं, जब किसी चीज़ को ये पकड़ते हैं, तो तब जब तक एक मुकम्मल नहीं होता वो किसी काम को छोड़ते नहीं। तो पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के एजुकेशन सिस्टम में हमारा फेल हुआ है, उसको बरकरार रखना है। और प्रायोरिटी जो है हमने एजुकेशन को हर चीज़ में है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने एजुकेशन को देना ही है। आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, वो दुनिया के किसी कोने में भी जाके सर्वाइव करेंगे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि हम लोग मैट्रिक पास करते थे तो वो दौर नहीं रहा। अब हमने दुनिया के लिए मुकाबला यहाँ पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और साथ ही विलेज एजुकेशन कमेटी और आपके काउंसलर साहब को, उन्होंने हमें भी यहाँ पे बुलाया और आज के हिस्सा बनाया। CEO LHTC Kargil, please come on the dais and third. Chief Engineer PHE, Joint Director Information, जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथी हैं, पेरेंट्स, यहाँ के स्टाफ और बाल्टी बाजार के जितने भी बाशिंदे यहाँ पे मौजूद है, आप सबको जुड़े सलाम नमस्ते। सबने एक स्कूल के बारे में स्टोरी बताया, तो मैं बस जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके नाम तो नहीं लूँगा, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक्स DCs है, सबको मैं इस मौके पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि आज सुबह से हमारा दिन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हम बहुत सारी स्कीमें हर साल, मैं भी अब यहाँ चार साल से यहाँ पे लद्दाख में हूँ, तो हर साल हम बहुत प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं, बाद में उसका क्या होता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि टाइम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है उसका। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट खुद हम अपने आंखों से देखते हैं तो ज़रूर सेटिस्फैक्शन होता है। और सुबह से मिडिल स्कूल का हमने यहाँ इसको स्टार्ट किया, फिर एक लाइब्रेरी, बहुत अच्छा लाइब्रेरी का बिल्डिंग बनाया है, उसका भी हमने इनॉग्रेशन किया। अभी आके प्राइमरी स्कूल जो अभी सबने बताया कि एक प्राइवेट स्कूल के बराबर कि उससे ज़्यादा भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, उसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ऐसा ही क्वालिटी हर जगह आप मेंटेन करें, ताकि क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में काम हमारे जल्दी एग्जीक्यूट भी होते हैं, एक क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि जो भी दूर दराज के भी इलाके, ये तो टाउन का बिल्डिंग है, बाकी भी हमारे दूर दराज इलाके में भी सेम क्वालिटी हमें मेंटेन करना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ डिमांड्स उसमें रखे थे, तो एक कंप्यूटर सेट्स और फर्नीचर का डिमांड किया था, तो DC एंड टाइट से मैं 5 लाख का यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हूँ। और बाकी जो स्टाफ के बारे में कुछ डिमांड्स की है, प्राइमरी स्कूल के नॉर्म्स को देख के हम ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आउट ऑफ वे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा बिल्डिंग बना है, यहाँ के VC स्टाफ सबका इंटरेस्ट है, काउंसलर साहब ने पर्सनल इसमें अटेंशन दिया है, तो हम भी एक आउट ऑफ वे जाके स्कूल को जो भी और भी सपोर्ट करना है ज़रूर करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। ये मैं एश्योर करता हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं पूरे स्टाफ, डिपार्टमेंट और काउंसलर साहब का मैं थैंक्स करना हूँ। VC and Councillor Town to present shawl to worthy ZDO Sir Musa Sahib. Now may I request Honorable Executive Councillor Punchok Tashi sir, please come on the dais and share your thoughts on this day. Engineer Mukul Saab, Joint Director Kashmir Saab,
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान यहाँ पे मौजूद, हमारे भर्ती बाजार और उसके इलाके के मोजिस शहरी स्टेशन प्राइमरी स्कूल भर्ती बाजार के प्रिंसिपल हेड मिसेस मैम और बाकी के टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी यहाँ पे डिग्निटरीज और बाकी गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, सबको मेरी तरफ से जुड़े वसलाम। आज सुबह से हम लोग इनाग्रेशन करते जा रहे हैं और हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया जो हाजी अब्बास के अपने टैलेंट और इसके अजूबा, जिसमें उन्होंने एक लाइब्रेरी वहाँ पे तैयार किया है, लाइब्रेरी के साथ कम्युनिटी हॉल, और यहाँ पे एक स्कूल और स्कूल के साथ कम्युनिटी हॉल, ऐसा हमने किसी और जगह पे नहीं देखा। ये हमारे सारे काउंसलरों के लिए एक आई ओपनिंग है और उनको मुझे लगता है, मैं महसूस कर रहा था कि हमें ऐसे इनाग्रेशन पे सारे काउंसलरों को बुलाना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि मॉडल डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि यूँ तो हम काफ़ी सालों से हमारे काउंसिल की ओर से हम सारे काउंसलरों को एक यकसन बराबर का एक मौका देते हैं काम लेने का, डेवलपमेंट करने का, लेकिन कुछ लोगों का अलग सा हट के वो होता है। तो मैं आज के इस मौके पे हाजी अब्बास साहब को बिल्कुल मुबारकबाद के हकदार है, मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग स्टाफ से मिलकर अपना आइडियाज़ को ग्राउंड पे उतारा है। उस स्कूल की हिस्ट्री तो हम लोगों ने देखा, कमर साहब से शुरू हुआ था, रोज साहब के दौरान मैं भी पिछले काफ़ी सालों से काउंसिल में रहा। हाजी अब्बास साहब हमेशा एक कम्युनिटी हॉल में, आज जाके पता चला वो कम्युनिटी हॉल कहाँ था, कहते हमारे प्राइमरी स्कूल एक कम्युनिटी हॉल में चल रहा, बोल के 2-3 साल उसी में निकल गया। और गवर्नमेंट का किसी और डिपार्टमेंट का लैंड जो है किसी और डिपार्टमेंट को देना जो है ना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और आज वाकई में हुआ है, तो अब सब लोग जो कल के भट्टी बाजार के लोगों ने भी इनको जो है ना कैनाल बनाने के लिए नहीं बोला, फुटपाथ बनाने के लिए नहीं बोला। आपने ये बता रहे थे कि 1.5 साल पहले जो है ना ये बिल्डिंग कंप्लीट हुआ था, और उस वक्त भी जो है ना आप लोगों का सिर्फ ये स्कूल और इस कम्युनिटी हॉल का आप लोगों ने वो रखा। लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि काउंसिल में जो है ना हम सब लोग ये चाहते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ अलग से तरीके से कुछ और चीज़ें हम बना के लोगों को दिखाएं, ताकि लोग हम पे फैल तो कि हमको बार बार इस काउंसिल में भेजें। तो ये एक जीते जी एग्जाम्पल है। मैं आप सब लोगों को वही बात पेश करना चाहूँगा कि हाजी अब्बास साहब को रिपीटेडली 3rd टाइम आप लोगों ने काउंसिल में भेजा है इन्हीं काम की बदौलत। तो इनका काम मुझे हमने देखा है, जिस तरह फिरोज साहब ने बोला, ये एक चीज़ को जब थामता है तो वो कभी नहीं छोड़ते है जब तक उसका एंड नहीं होता है। वो हमने देखा है, हमें इसकी इल्म है। तो हाजी अब्बास साहब सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, पूरे करगिल और पूरे लद्दाख जहाँ हमको मैं तो ये सोचता हूँ कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट जहाँ हमें परेशानी आता है वहाँ हम हाजी अब्बास साहब की विजडम को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो काउंसिल में हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो। तो इनकी जो है ना काबिलियत जो है ना हमें पूरे लद्दाख में, पूरे करगिल में जो है ना हम इसकी वो यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसके जिन्होंने इनकी काबिलियत को समझा और काउंसिल में भेजा, आप सब लोग इस मुबारक के हकदार हो। और दूसरी चीज़, आज एक चीज़ आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हम पहले ये सोचते थे कि वो सिर्फ कैनाल, फुटपाथ और रिजर्वर टैंक के लिए ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्योंकि पहले कम्युनिटी का ही काम करते थे। हमने ही शुरू किया था। हमने जब स्पेशल टास्क फोर्स में हमारे पास कुछ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बिल्डिंग आया था फिरोज साहब की क़यादत में, तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी कुछ काम देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, ब्रिज देते हैं, रोड देते हैं, क्योंकि उनका इंजीनियर किसी और कॉलेज से किया हुआ इंजीनियर तो नहीं। इंजीनियर तो वहाँ के भी इंजीनियर, इरिगेशन, PHE, KDA सब में जो ना वही इंजीनियर्स हैं, वही JEs, AEEs एग्जाम्स वगैरह है। तो हमने वो कोशिश किया था, और उस वक्त जो ना इन्होंने जो PWD 1.5 करोड़ में बनाता था वो इन्होंने 70 लाख में वही बिल्डिंग, वही स्पेसिफिकेशन बना के दिया था हमें। तो इतना फर्क था। तो आज तो हमने देखा RMD का, मैं एक कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने भी ये मेहनत की है और करके दिखाया। ये बिल्डिंग जो इन्होंने बनाया है, हम भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप सब लोग प्राइवेट स्कूल आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ 5-5, 6-6 लाख फीस सालाना लेते हैं, वहाँ पे भी बिल्डिंग इससे अच्छा नहीं होते हैं। इसी के कंपैरिजन में दिल्ली के जो पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल एजुकेशन, जो दिल्ली का मॉडल लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, वहाँ पर भी जो है ना स्कूल का बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी के बराबर ही, यही सेम है। तो आज जो है ना जो इस प्राइमरी स्कूल है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है प्राइमरी स्कूल, इस लेवल के प्राइमरी स्कूल जो है ना, चाहे वो गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल, तो कम से कम जितना भी देगा काउंसिल 10 लाख काउंसलर देगा, तब 10 लाख जो है ना काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट लंकर का स्कूल है, दास का स्कूल होंगे, उस साइड में स्कूल का यहाँ पे हमारे काफ़ी स्कूल के मैनेजमेंट वगैरह अपना जो भी वहाँ पे वहाँ पे होते हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ गया है।
और बहुत काबिल है और वो हाईली एजुकेटेड है। सिर्फ कमी है तो थोड़ा सा डेडिकेशन की कमी है, जिसको ये हर दिन आने के साथ साथ और इम्प्रूव हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हमारा जो अभी थोड़ा सा गैप है वो पूरा हो जाएंगे। बाकी जनता का डेवलपमेंटल लासी बच्चे की जनता दिया खासकर टाउन, क्योंकि ये आज टाउन का महफिल है, तो मैं आपको दो चीज़ बता दूँगा, कुछ चीज़ बता दूँगा जिससे आपका 24/7 वाटर सप्लाई का है। 400 करोड़ से ऊपर हमारा सेंशन हुआ है, इंशाल्लाह अगले साल शुरू होने वाला है। आपका STP है, उसमें 200 करोड़ से ज़्यादा सेंशन है, वो भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। अच्छा, आपका अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब आपका अस्पताल वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हमारे लोगों को खासकर इमरजेंसी सर्विस देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। अभी इंशाल्लाह हमने उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन में वो सेंशन भी आ गया, उसके लिए पोस्ट भी एडवर्टाइज हो गया। इंशाल्लाह हमारा डिस्चार्ज जल्दी उसको उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके यहाँ पे हमें डॉक्टरों का और पैरामेडिकल स्टाफ का हमें पोस्ट जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल करेंगे। अच्छा, इकबाल प्रोजेक्ट आपका काफ़ी साल से बंद पड़ा था। मैंने सोचा कहीं हमें इमरजेंसी होगा, यहाँ पे हमें लाइट अगर कहीं से बंद हो गया बाहर से तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 4 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, अल्लाह की फजल से 27 करोड़ से लगभग 27 करोड़ हमने सेंशन करा के अभी काम शुरू हो गया है। अगले साल तक वो भी इंशाल्लाह फिर एक बार अपनी शान में आ जाएगा, क्योंकि इकबाल प्रोजेक्ट हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था, जो जिसने हमारे करगिल वालों को जब हमें रोशनी दिखाया, इकबाल प्रोजेक्ट नहीं दिखाया था जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला। तो हम चाहते हैं उसी पुराने शान को ये करने का। अच्छा, आपका अपो बाज़ार है, उसका ये जो डेवलपमेंटल उसको टूरिज़्म सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, उस पर भी बहुत से करोड़ उस पर खर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा भी आपका अर्बन डेवलपमेंट में मेरे ख्याल में हमारा 100-200 के करोड़ के आसपास हमारा टाउन के इर्द गिर्द में हमारा काम या शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। इस तरह आपका संगम है वहाँ पे, ये हमारा जहाँ पे द्रास रिवर और ये हमारा दरियासुर मिलता है, वहाँ पे हम एक वो दर्शन 2 करके वो एक प्रोग्राम है, इसमें सुदेश दर्शन 2 करके हमारे इस टूरिज़्म का, उसमें भी 100-200 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा है, खूबसूरत व्यू पॉइंट बनेगा। और हमने ये किया है वहाँ से एक वो गिलास का एक ब्रिज जैसा बनेगा, जिसमें एक अच्छा खूबसूरत इंशाल्लाह हमारा ये सोच है अगले कुछ सालों में वो जब बन के तैयार हो गए ना, एक बड़ा एक खूबसूरत सा एक अलग सा एक ये होगा लोगों को देखने के लिए। तो इस तरह हम टूरिज़्म सेक्टर का लीजिए, हमारे टूरिस्ट में बहुत सारे जो ये क्या आते हैं होटल्स है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मियों में, सर्दियों में, या हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं है। एक तो हमने पहले हमारे करगिल को एक नाइट स्टे के तौर पे जाना जाते थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं 5 से 7 दिन का स्टे करने का। उसके अलावा इटिनरी बनाया है इंशाल्लाह, उसने हमने अलग अलग ये रूट्स हमने बनाया है। और हम इस सिलसिले में यहाँ पे हमारे श्रीनगर के जो हमारे टूरिज़्म सेक्टर है उनसे बात करके इंशाल्लाह हम इस साल या अगले साल की शुरू में हम उनके साथ एक वो बड़ा कॉन्फ्रेंस करके वहाँ श्रीनगर में ही हम कोशिश करेंगे कम से कम 5% अगर श्रीनगर का कश्मीर का टूरिस्ट यहाँ पे हम ये कर सकते डाइवर्ट कर सकते हैं तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, STP और ख़ासकर STP और 24/7 को लेके मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बता दूंगा कि आपका अगले 1-2 साल में बहुत काम होने वाला है। उससे क्या होगा, आपका रोड वगैरह बहुत उसका हालत ख़राब होने वाला है। पहले आप लोग अभी से बता के रखता हूँ, मेहरबानी आपको 1-2 साल वो बियर करना पड़ेगा। जब वो बन के आएगा ना, फिर आपको सालों साल इंशाल्लाह फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इस तरह आपको अभी हमें इसका प्रॉब्लम है क्या कि ये गाड़ियों का रखने का, ये क्या कहते हैं उसको, ये गाड़ियों के लिए ना पार्किंग स्पेस के लिए पिछले साल हमने शुरू किया था वहाँ पे मल्टी कार पार्किंग बनाने का, आपके वहाँ जहाँ पे हमारे अभी बस स्टैंड वगैरह है, वहाँ गवर्नमेंट ने माना नहीं, वो कहते हैं कि पानी के बेड पे आता है। तो इस साल इंशाल्लाह हम सब मिल के जो हमारे टूरिज़्म का अभी ऑफिस है, प्लस जो ओल्ड टैक्सी स्टैंड है, प्लस जो हमारा ये क्या कहते हैं ये फूड एंड सप्लाईज वालों का ऑफिस है,
उन सबको मिला के इंशाल्लाह हम शुरू करें मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, जिससे हमारा 500,000 गाड़ी रखने का हम उसमें ये प्लान बना रहे हैं, ताकि हमारे शहर का जो ये खूबसूरती है उसको और ज़्यादा चार चांद लगा सके। इस तरह हमारे फुटपाथ पे हम अच्छे अच्छे टाइल लगाने का इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। आपके इकबाल ब्रिज है उस पर काम चल रहा है, उस पर उसका ब्यूटिफिकेशन करके एक अच्छा से एक रेस्टोरेंट बना के उसका व्यू पॉइंट बना के वो क्या नाइट का वो क्या होता है लाइट वाइट लगा के अच्छा वो वाला नहीं कि फिर लोग उसको गलत उस पर ये ले ले, मगर अपने जो इस्लामिक इसके अंदर रख के हम उस पर काम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह और बहुत सारे आपका जी आपका हस्पताल का रोड है हमारा उस साइड से जो यहाँ से इकबाल ब्रिज से आगे ये क्या होता है उसको आपके पेट्रोल पंप से आगे उसको इंशाल्लाह हम बिल्कुल एक नेशनल लेवल का एक रोड बनाने जा रहे हैं। उस पर भी हमने उसमें आपके एसडीपी वगैरह में हमने भेजा हुआ है सीआरएफ में। मुझे उम्मीद है ऐसे बहुत से काम हैं जो बड़े बड़े छोटे काम भी बहुत सारे चल रहे हैं। उसके लिए मैं सब ऐसे खासकर टाउन के काम का सेहरा मैं आपके काउंसलर हाजी अब्बास को देता हूँ और पूरे टीम को। और एक चीज़ मैं आपको एक ये आपके डेवलपमेंट से हाल के है एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेहरबानी लोगों को आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग टाउन में रहते हैं, आप हमारे थिंक टैंक है शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जो हमारे जैसे रिजर्व हमारे साहपुर रीजन है, हमारे शकरचित्तन सरकोट रीजन है, मेहरबानी आप सबको उठना पड़ेगा। ये सामपुर का मसला नहीं है, ये शकरचित्तन का मसला नहीं है। होगे हमारे दास्तान में होगी, दास्तानों में आप लोगों को ये ख्याल रखना है। और यूनाइटेड विल स्टे डिवाइडेड मैं अटैक हाथ में से कुछ देना चाहता था हमारे डीसी साहब ने जो होगा, तो मेहरबानी का बिल्कुल जरूरी रखना है, क्योंकि आपने देखा प्राइवेट आपके प्राइवेट स्कूल है 10% की तो सही से ला के आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे सब हाई स्कूल में सबसे पहले अपने ऑफिशियल टूर से आज जो दिन पर हम लोग ऑफिशियल टीम का हिस्सा रहा है उससे हट के एज ए प्रेसिडेंट कमेटी बल्ती बाजार के तौर पर आप लोगों से सबसे पहले मैं इज़्ज़त नवाजिरा में डॉक्टर जफर आखुन साहब CSC LAGC करगिल, जी पुंचौतशी साहब EC, जनाब बाला साहब सोसे डेवलपमेंट कमिश्नर, हमारे एक्स CC और काउंसलर फिरोज खान साहब, यहाँ में जो हमारे काटो इम्तियाज़ साहब, हमारे JD हादी साहब, इफ्तिखार साहब और बाकी तमाम, खुसूसन यहाँ पे मौजूद हमारे टाउन काउंसलर हाजी अब्बास साहब, उन सबको मैं अपनी तरफ से हमारे बल्ती बाज़ार के तमाम शरबा की तरफ से और हमारे कमेटी मेंबर्स की तरफ से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर हमारा हौसला अफजाई की। और मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी कमेटी मेंबर्स और VC मेंबर्स इस स्कूल के कि इन्होंने एक अच्छा सा प्रोग्राम इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया, खुसूसन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उन सब के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने शरबा बल्ती बाज़ार को। आज हमारा ये जो 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके हमारे टाउन काउंसलर की कोशिशों की वजह से आप लोगों को आज मुकम्मल होकर हैंड वर्क इनॉग्रेशन हुआ, उसके लिए मैं सबों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि टाउन काउंसलर ने यकीनन ओवरऑल टाउन में बहुत अच्छे काम किया है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को इस जगह पर जो स्कूल और कम्युनिटी हॉल बनाया है इनका बेस्ट अचीवमेंट में से एक मैं मानता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी आपको तो मालूम है हमारे करगिल में बिल्कुल स्पेस अवेलेबल नहीं है कहीं भी जाए किसी भी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। तो उस जगह में अपनी कोशिशों की वजह से जैसे हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन चला, जिन्होंने भी अब सबों का नाम लेते रहने से फिर बहुत टाइम भी निकल जाएगा, सबों ने शुक्रिया अदा भी किया, इन्होंने इनिशिएट किया और जिन्होंने बीच में मेहनत किया और अभी अख्तिताम तक पहुँच कर आज
स्कूल भी हमें हैंड ओवर हुआ अल्लाह के फजल करम से। और ये 2 प्रोजेक्ट से आज ये सिर्फ स्कूल ही नहीं, हमारा कम्युनिटी हॉल बल्ती बाज़ार हमें कंप्लीट होके हैंड ओवर हुआ। हमारे कमेटी मेंबर्स को आज से ये हैंड ओवर हुआ है। तो मैं अपने कमेटी मेंबर्स को भी कहना चाहता हूँ कि इस हॉल का, और वीसी मेंबर्स को कहना चाहता हूँ कि स्कूल की बिल्डिंग्स का देखभाल करना अब हमारा फ़र्ज़ बना है। तो इसके मेंटेनेंस और उसको मेंटेन रखना हमारा उसूल है। हम इंशाअल्लाह इसको मज़ीद और भी अच्छा करके ये करना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट का बल्ती बाज़ार के तौर पर बुलाने से मैं इस दाइश को थोड़ा शुक्रिया अदा करने के लिए इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहता हूँ कि हमारे हाल ही में इस साल हमारे बल्ती बाज़ार मस्जिद का एक हादसा हुआ था। तो मस्जिद जलने के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें हमें बहुत मदद किया, उसको जल्दी रिव्यू करके लोगों को और दोबारा इस मस्जिद को तैयार करने में, जिसमें हमें थोड़ा बहुत फंडिंग भी हर किसी ने किया है। मैं डीसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे मस्जिद की फर्निशिंग के लिए 1-1.5 लाख रुपया सेंक्शन किया था। लेकिन साथ ही इशारा करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि ये जो दिया था वो हमारे ग्राउंड फ्लोर, मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर को ही हुआ, लेकिन ऊपर हमारा 2 फ्लोर से मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह अब आपने अनटाइड फंड में से उनके लिए भी थोड़ा, और मस्जिद बाकी जो स्टोरेज बना है उसके लिए भी कुछ सेंक्शंस करने के लिए। हाँ, सीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी हॉल के पीए सिस्टम के लिए उन्होंने अपने अनटाइड फंड से हमें 7 लाख रुपये सेंक्शन किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ये चीज़ें बनाने में काम आया। और खुसूसन मैं अपने बल्ती बाज़ार के बाशिंदों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने महल्ले से हट के बाहर हमें चंदा करने का मौका नहीं दिया। दिल खोल के इंडिविजुअली सबों ने कंट्रीब्यूशन करके इस मस्जिद को पूरा दोबारा बनाने के लिए, इमामबाड़ा बनाने के लिए, उन सब के लिए मैं एज ए प्रेसिडेंट आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसी मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा बना है, लेकिन स्कूल तभी आबाद रहेगा जब हम इसमें आप लोगों को स्ट्रेस करना है क्वालिटी एजुकेशन पर। क्योंकि ये स्कूल सिर्फ हमारे बल्ती बाज़ार के महल्ले के बच्चों के लिए ही नहीं, क्योंकि ये स्कूल सेंटर ऑफ द टाउन होने से यहाँ पर बीपी जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के लोग पूरा टाउन में जो बैठते हैं उनके सारे बच्चे, और जो स्ट्रीट वेंडर्स जो यहाँ लोग हैं उनके सारे बच्चे भी इस स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस स्कूल से अगर क्वालिटी एजुकेशन दे के क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस स्कूल से अगर निकालें तो हमें न सिर्फ दुनिया में बल्कि हमें आखिरत में इसका जज़ा ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम अपने महल्ले के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वीसी मेंबर्स को भी, कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पर सब लोग मिलके इस स्कूल में जो भी करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि मदद करें। तो साथ में हम लोग अभी देख रहा था हमारे दास स्कूल में ये HDFC बैंक ने एक स्मार्ट क्लास उन्होंने डेडिकेट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैं सीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब और टाउन काउंसलर से, कि उनसे रिक्वेस्ट करके इस स्कूल के लिए भी एक स्मार्ट क्लास वो लोग भी अपनी तरफ से डेडिकेट करें, ताकि इस स्कूल का भी क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और एक बार फिर मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर पेशेंस के साथ मैं सारे लोगों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए सीनियर टीचर बल्ती बाज़ार कारगिल आज हमारे स्कूल एक अख्तितामी तकरीब में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के हाथों इफ्तिताह हुआ। इनके हमरा इनके बाकी अमला और स्कूल के पेरेंट्स, वीसी मेंबर्स सभी यहाँ पर हाजिर रहे। इनके इस्तकबाल के लिए हमने बच्चों को सड़क से, स्कूल की गेट से स्कूल तक के लिए एक कतार में रखे है। तो स्कूल में हमारे बहुत स्कूल जो है इनमें इनरोलमेंट जो है 78 तक पहुँचे हुए, और इस आगे इंशाअल्लाह आगे साल तक भी हम इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत काबिल है। मैं तो एक सीनियर टीचर हूँ, बाकी टीचर जो है वो इनका
क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं स्कूल में इससे भी आगे ये अपग्रेड भी होना चाहिए। हमने आगे लिखा है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये दर्जा बढ़ेगा तो स्कूल में बहुत इससे भी अच्छा तरक्की हो जाएगा। जी फिरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो कल से जो है वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमें थोड़ा बहुत जहाँ पहले की ज़रूरत थी वो आप वो सब पूरा कर रहे हैं हमारी। तो फिरोज साहब बात ऐसी है कि जो ये स्कूल है पहले तो हमने अभी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो चलाया था, उसमें हमने दिखाया था कि पहले हमारा स्कूल क्या था और अभी ये किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। तो पहले रोल भी जो है बहुत कम हुआ करता था, तकरीबन कोई वही 10 से 20 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे हुआ करते थे और कुछ थोड़े बहुत टीचर्स थे यहाँ पे। और आज के डेट में मैं हमारे ऑनरेबल काउंसिलर टाउन हाजी मोहम्मद अब्बास साहब और बशीर हक चौधरी साहब और उनके साथ हमारे एक सीसी फिरोज साहब, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके मदद से जो है वो आज हमें एक अच्छा जो है वो स्कूल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बल्टी बाज़ार में आज आप देखिए, आप लोग यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये एक स्कूल है, वाकई में एक स्कूल है। हम बोलते हैं कि हाँ सर एक स्कूल है, तो कहते हैं कि यार ये एक स्कूल जब इतना आप लोगों ने इतना अच्छा बनाया है तो इसका अंदर जो है वो कैसा हमें देखने को मिलेगा जो है वो। इसके लिए हम काउंसिलर टाउन का हमारे बिलखुसूस हम उनका बहुत दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दे दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं और साथ साथ हमारे आज यहाँ पे ये कम्युनिटी हॉल भी हमारा यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है जिसका फ़ायदा हम पूरा बल्टी बाज़ार ले रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम पूरे बल्टी बाज़ार के आवाम की तरफ से हम हाजी अब्बास साहब का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी हॉल नहीं बल्कि हमारा ये प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन हुआ और हैंड ओवर किया हमारे बल्टी बाज़ार के ये क्या कहते हैं महले को और बाकी स्कूल मेंबर्स को। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे राइट फ्रॉम बशीर हक चौधरी से लेके हमारे एक्स सीसी फिरोज़ खान साहब से लेके जनरल इश्यूज इनिशिएट जो किया हमारे कमर अली अखन साहब ने और आपके जो डीसी हमारे बाला साहब सूसे हो या हमारे अभी LHDC डॉक्टर जाफ़र अखन, उन सब का मैं और ख़ुसूसन हमारे करगिल टाउन का जो काउंसलर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि करगिल जैसे इस कंजस्टेड जगह में एक ऐसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह प्रोवाइड करके एक बड़ा 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आज मुकम्मल होकर इनॉग्रेशन किया है। उनका मैं ये टाउन काउंसलर का एक बेस्ट अचीवमेंट में से एक चीज़ मानता हूँ। और मैं अपनी तरफ से एज ए प्रेसिडेंट अपने कमेटी की तरफ से और अपने पूरा महिला बल्टी बाज़ार के अवाम की तरफ से सारे एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने बल्टी बाज़ार के लोगों को कि हमें ये चीज़ें इस चीज़ पे तैयार होकर हमें मुहैया हुआ। लेकिन आज सच पूछे आज बहुत खुशी हुई कि हमारे एक तो हमारे टाउन के काउंसलर अपने मेहनत और कोशिशों की बदौलत आज टाउन में आपने देखा सुबह से हम बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स का हमने वहाँ पे इफ्तिताह किया। उसमें लिव इरिगेशन स्कीम जो है जिससे हमारे दास देथंग और बाकी जो हमारे पीशू वगैरह के एरियाज़ के लिए पानी का जो किल्लत का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं होगा। दूसरा ये आपने देखा वहाँ पे जो हमारे 10 का स्कूल जो बना है नीचे मिडिल स्कूल, वो एक आर्ट ऑफ एक बहुत एक अच्छा खूबसूरत जिसमें मल्टी यूटिलिटी उन्होंने ये बनाया है स्कूल। एक तो स्कूल के साथ साथ एक तो स्कूल आपने देखा एक मिडिल स्कूल कितना खूबसूरत बहुत खूबसूरत स्कूल बना है और प्लस जो उन्होंने कम्युनिटी हॉल प्लस लाइब्रेरी सबको हम आप जानते हैं हमारे यहाँ पे जगह की कमी है करगिल खासकर करगिल में, तो इसको पूरा है उन्होंने बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया है। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर और हमारे जो मेंबर्स है वहाँ के दास के फिर प्लस हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उस साइड के PWD वालों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छा एक बिल्डिंग तैयार किया है जो हम इंशाल्लाह दूसरे हमारे जो
ऑनरेबल काउंसलर्स, दूसरे जो हमारे ये जहाँ पे ये हमारे काउंसलर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जगह भी रह जाए और इन टाइम में ये कंप्लीट हो जाए। और तीसरा आपने देखा है स्कूल कितना खूबसूरत प्राइमरी स्कूल है, हालांकि मेरे ख्याल में पूरा हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग होगा। हमें उम्मीद है वो यहाँ बच्चों का रोल भी बहुत अच्छा है, 70 से ज़्यादा है। तो हम इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेंगे। तो उसके लिए जितना तारीफ़ कम है। इसमें हमारे रूरल डेवलपमेंट में वालों ने बनाया है। आप जानते हैं रूरल डेवलपमेंट का पहले अच्छा है कि वो नहीं होता था, लोगों में ना इम्प्रेशन नहीं था। अब उन्होंने अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनाया और एक बिल्डिंग ये लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी है कि रूरल डेवलपमेंट भी बहुत किसी मतलब बाकी बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव एजेंसी से कम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ भी वही इंजीनियर होते हैं। सिर्फ पहले पता नहीं क्या होता था, मगर आज के दिन में उनका बिल्डिंग भी उतना खूबसूरत, उतना टिकाऊ, उतना क्वालिटी वाइज वाले होते हैं। तो उसके लिए मैं उनका भी मशकूर हूँ। और साथ में आज सच पूछिए बहुत अच्छा लगता है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टिपुलेट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। और हमें ये लगता है हमारा खास कर कैपेक्स बजट का ये सब बिल्डिंग या जो स्ट्रक्चर बने हैं हमारे कैपेक्स बजट से बने हैं। और कैपेक्स बजट का हम 5 साल में या 3 साल में जो कंप्लीट करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप ज़रूर महसूस हुएंगे मुख्तलिफ हमारे शुरा हज़रात ने, मुक़र्रिरीन हज़रात ने आज के इस ख़ास इवेंट के हवाले से अपना भरपूर आरा व तजावुज़ात और तासुरात से हमें नवाजा और हमारे लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए। ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन सेगमेंट्स प्रोग्राम्स के हवाले से हम नशरियात और पॉडकास्ट वगैरह अर्गतू 90.8 के FM की जानिब से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए हम आपसे रुख़सत चाहते हैं। हमारी पूरी टीम को, फिरोज साहिब और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखेगा बहुत अच्छा सा ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया। जून सलाम, आदाब, जय हिंद।